Okay, I hope the second question was clear to everyone. Okay, in the second question, we were talking about the objectives of preparing a budget. The first objective was reallocation of resources or removal of regional inequalities. So, one objective of preparing a budget was to reallocate the resources, okay, and to remove regional inequalities. The second objective of preparing a budget was to redistribute income and wealth, imposing higher taxes on the rich, okay, and using that tax income to provide services to the poor, okay. The third objective of preparing a budget was economic stability and price stability. If there is excess demand or inflation in the economy, the government will increase all sort of taxes and reduce subsidies to curb that excess demand. If there is deflation or deficient demand in the economy, the government will reduce all sort of taxes and provide subsidies to boost that aggregate demand. Okay. Fourth objective was management of public enterprises of the government, like heavy manufacturing industries, power generation, railways. Okay. The fifth objective of preparing a budget was development of agriculture and industry. And the sixth objective of preparing a budget is to provide maximum employment opportunities to the poor. Okay. Now, we are now looking at components of a budget. Okay, so the budget is divided further into two parts: the revenue budget and the capital budget. As you can see on your screens, you can see the flow chart. Budget consists of two components: revenue budget, capital budget. We can categorize revenue budget further into two parts: revenue receipts and revenue expenditure. And we can classify capital budget further into two parts: capital receipts and capital expenditure. Okay, so let us talk about receipts first, then we'll talk about expenditure. So budget receipts. Okay, so budget receipts, further we can classify them into revenue receipts and capital receipts. Okay, revenue receipts you can further classify into two types: tax revenue and non-tax revenue. Capital receipts you can further classify into three types: loan, recovery of loans, and disinvestment. Okay, so let us try now to understand what is meant by revenue receipts and capital receipts. Okay, so let's do one thing. Let me first explain to you on the whiteboard exactly what revenue receipts and capital receipts are. Okay, so let's first come to what is meant by revenue receipts and capital receipts. So, okay, so budget receipts are classified into revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts are what? Are those which neither increase the liabilities of the government, nor reduce the assets of the government. Revenue receipts are those receipts which neither increase the liabilities of the government nor they reduce the assets of the government. Okay, what are capital receipts? Capital receipts are those receipts
which either increase the liabilities of the government, which either increase the liabilities of the government or reduce the assets of the government. Okay, so when we talk about revenue receipts, we use the phrase neither and nor. When we talk about capital receipts, we use either and or. रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स है गवर्नमेंट की जो ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट की एसेट को कम कर रहे हैं. कैपिटल रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स हैं जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रही है या गवर्नमेंट की एसेट्स को कम कर रही है. अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स को वी कैन फर्दर क्लासिफाई एज फॉलोज. एक हो गया हमारा टैक्स रेवेन्यू, ओके, एंड एक हो गया हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब अगर हम गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं. अब जो टैक्स रेवेन्यू है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स. एक हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस and another form of tax revenue which the government receives is from indirect taxes. Now all of us know direct taxes. Direct taxes are those taxes in which the liability and the incidence of the tax is on the same person. Okay, तो direct tax के अंदर liability and incidence. Incidence means the burden of the tax. Liability and incidence of the tax is on the same person. डायरेक्ट टैक्स से अगर हम एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स, एग्जांपल हो जाएगा हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में से पे होता है, जो एमएनसीज पे करती हैं गवर्नमेंट को, एक्सेट्रा. इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स इन विच द liability and the incidence of tax is on different persons, is on two different persons, या हम कह सकते हैं टू डिफरेंट पार्टीज. मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स या जीएसटी की अगर हम बात करें तो वो टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर्स की. बट वो प्रोड्यूसर्स उस टैक्स के बर्डन को किसको पास ऑन कर देते हैं? टू द कंज्यूमर्स. ओके, एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस नो आज की डेट में द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आपको पता होगा इसके रेट्स क्या होते हैं? 8%, ओके, 18%, 28%. ओके, so GST rates, all of you must be knowing them. Okay, so आप ये देखो जो गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव कर रही है हमसे, तो ना तो गवर्नमेंट जो हमसे टैक्सेस रिसीव कर रही है उससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं ना गवर्नमेंट के कोई एसेट्स कम हो रहे हैं. जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उससे कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी थोड़ी ना बढ़ रही है. गवर्नमेंट ने कोई वो टैक्स हमको वापस थोड़ी ना करना है. तो जो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं दैट इज नीदर इंक्रीजिंग द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट नॉर इट इज रिड्यूसिंग द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू को अगर हम क्लासिफाई करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू फर्दर वी कैन क्लासिफाई नॉन टैक्स रेवेन्यू इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, सब पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज कमर्शियल रेवेन्यू,
and another part is called as administrative revenue. नाउ कमर्शियल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट कमर्शियल सेक्टर से रिसीव करता है. ओके, कमर्शियल रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है? कमर्शियल रेवेन्यू के अंदर पोस्टेज, जो हम टोल टैक्सेस पे करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू. इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, रेलवे सर्विसेज. तो गवर्नमेंट या जो जो रेवेन्यू रिसीव करती है पोस्टेज से, पोस्टेज स्टैम्प्स, टोल्स, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे सर्विसेज, इससे जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, इट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू. अगेन इसमें गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ना गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं. तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या है? जो गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कलेक्ट करती है. एग्जाम्पल, फीस, ओके, फीस, फाइन, चलान्स, ओके, पेनल्टीज, एक्सेट्रा. तो जो गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करती, दैट्स अ पार्ट ऑफ administrative revenue, which further comes under non-tax revenue, and non-tax revenue further comes under revenue receipts. Okay, तो अगर हम revenue receipts को sum up करें तो revenue receipts are those receipts जिससे ना तो गवर्नमेंट की liability बढ़ती है, ना गवर्नमेंट के assets कम होते हैं. revenue receipts को हम further classify कर सकते हैं into tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue is that revenue which the government collects in the form of two form of taxes, direct taxes and indirect taxes. Direct taxes are those taxes in which the liability and incidence of tax is on the same person. इसका मतलब जिस पे टैक्स लगा है वही टैक्स पे करेगा. Example, income tax, corporation tax. These are two very good examples. Indirect taxes are those taxes in which the liability and incidence of tax is on two different persons. यानी टैक्स एक पार्टी पे लगा है, but it will actually, the burden of the tax is actually taken care of by the other party. Example of indirect tax is GST. Okay, GST के rates हम सबको पता है. GST के rates 8%, 18% and 28%. Okay, then we talk about non-tax revenue. So guys, GST rate में एक और होता है 12%, 12%, 8%, 12%, 18% and 28%. Okay, so now we talk about non-tax revenue. So non-tax revenue is the revenue collected by the government other than taxes. Okay, so non-tax revenue we can further categorize as commercial revenue and administrative revenue. Now what is meant by commercial revenue? Commercial revenue is the revenue collected by the government from the commercial sector. Okay, तो गवर्नमेंट जो पोस्टेज स्टैम्प से जो गवर्नमेंट फीस कलेक्ट करती है, आप पोस्ट ऑफिसेज में जाओगे आपको पोस्टेज स्टैम्प्स नजर आते हैं. ओके, तो पोस्टेज से जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू. ओके, टोल टैक्सेस जो हम पे करते हैं, ओके, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू. इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, इंटरेस्ट इनकम, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होती है उसमें जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. ओके,
रेलवे सर्विसेज जो हम टिकट्स बुक करते हैं IRCTC के थ्रू, गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर रेलवेज, जो हम टिकट्स बुक करते हैं फॉर रेलवे सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर हमारा पोस्टेज फीस आती है, फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो पे होती हैं, फाइन्स एंड चलान जो पे होते हैं, पेनल्टीज जो पे होती हैं, ओके, दोज आर ऑल अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। Okay, now let us move on to the next thing, which is called as capital receipts. Now capital receipts are those receipts which will either increase the liabilities of the government or they will reduce the assets of the government. यानी अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स कलेक्ट कर रही है तो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स अगर हम देखें तो लोन्स की अगर हम बात करें, जब गवर्नमेंट बोरो करती है, रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें, रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें, या अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, दीज आर 3 वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। जब हम लोन्स कलेक्ट कर, जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो व्हाट इज हैपनिंग? लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर गोइंग अप। रिकवरी ऑफ लोन्स मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था वो गवर्नमेंट ने जो लोन दिए थे वो गवर्नमेंट को वापस पे बैक हो गए। तो जो लोन गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, लेकिन जो लोन गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। अब अगर वो लोन रिकवर हो गया तो इसका मतलब गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर को लोन्स दिए या गवर्नमेंट ने जो कंपनीज को लोन्स दिए वो लोन्स गवर्नमेंट को पे बैक हो गए। इसका मतलब गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए। एसेट कम होने का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। एंड डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन डिसइन्वेस्टमेंट मींस selling of shares in the public sector enterprises. ओके, सो एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहा है टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट का अब ये मतलब समझ लो कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर 51% हो गया इक्विटी में और गवर्नमेंट का इक्विटी के अंदर जो स्टेक है या जो शेयर है वो 49% हो गया। सो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने अपने कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेल कर दिए, या एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपने एसेट सेल कर दिए टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे एसेट्स जो है गवर्नमेंट के वो कम हो रहे हैं। एसेट्स कम हो रहे हैं मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आता है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच ईदर इंक्रीज द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लोन्स की बात करें तो गवर्नमेंट जब लोन ले रही है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने जो बाकी सेक्टर्स को लोन्स दिए, जब वो सेक्टर्स गवर्नमेंट को लोन वापस कर रहे हैं मतलब रिकवरी ऑफ लोन्स, तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। या अगर हम इक्विटी की बात करें तो गवर्नमेंट की जो इक्विटी में स्टेक है, जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, वो कम हो जाते हैं 49% एंड प्राइवेट सेक्टर्स शेयर इन इक्विटी गोज अप टू 51%।
दैट मीन्स गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर. उस केस के अंदर गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीव्स. तो कोई आपसे ये पूछे कैपिटल रिसीव्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो 3 एग्जांपल्स हैं: लोन्स, recovery of loans, and disinvestment. So I hope all of you have understood this and have no doubts. Okay. So we can go forward. तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे हमने बजट रिसीप्ट्स को क्लासिफाई कर दिया. ये सारा टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, इन हाउ मेनी पार्ट्स बजट रिसीप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड, ये हमने पढ़ लिया. रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स. ओके, what is meant by revenue budget? So revenue budget shows the current receipts of the government and the expenditures that can be met from those receipts. ओके, रेवेन्यू बजट ये कैप्चर करता है कि गवर्नमेंट की करंट रिसीप्ट्स क्या है और उनसे क्या क्या एक्सपेंडिचर्स करे जा सकते हैं. व्हाट आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड, ये हम पढ़ चुके हैं. रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स that do not increase the liabilities of the government nor do they decrease the assets. These are recurring in nature. Recurring in nature मतलब ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स आती रहती हैं to the government. They are recurring in nature. ये नहीं है कि ये वन टाइम नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो कलेक्ट कर रही है वन टाइम है, या गवर्नमेंट जो कमर्शियल रेवेन्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू को जो कलेक्ट कर रहा है, ये कोई वन टाइम नहीं है. दीज आर रेकरिंग इन नेचर. From time to time the government collects taxes, from time to time the government collects commercial revenue or administrative revenue. So these are recurring in nature. Okay, we can further classify revenue receipts into 2 parts: tax revenue, non-tax revenue. Tax revenue, tax is a legal compulsory payment made to the government without expecting anything in return. Okay, so tax revenue consists of further 2 parts: direct taxes and indirect taxes. Direct taxes are those taxes in which the tax liability and incidence of taxes on the same person. They are imposed on income, wealth and property. You cannot escape direct taxes. मतलब अगर आप पे direct taxes impose हुए तो आपको pay करने ही पड़ेंगे. These are directly paid by the consumer to the state. Examples हम पढ़ चुके हैं: income tax, corporation tax, wealth tax, property tax and so on. Indirect taxes के अंदर tax liability of an indirect tax is on the producer seller, but the burden of the tax is actually passed on to the consumer. These are imposed on goods and services which people consume, and they are indirectly taxing the income at the time when the income is spent. You should all remember, direct taxes directly tax your income, but indirect taxes will indirectly tax your income. क्योंकि indirect tax आपका income पे नहीं लग रहा directly. Indirect tax उस good पे लग रहा है जो आप buy करने जा रहे हो. जो good आप buy करने जा रहे हो, indirect tax उस पे लगता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है टू बाय दैट गुड. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके इनकम पे इंपोज हो रहा है, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्स को आप एस्केप कर सकते हो बाय नॉट बाइंग दैट गुड जिस पे टैक्स लगा है. भाई जिस गुड पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, अगर आपने वो गुड नहीं बाय किया तो आप, देयर इज नो नीड टू पे दैट इनडायरेक्ट टैक्स, बट डायरेक्ट टैक्स यू हैव टू पे इफ इट इज इम्पोज्ड. ओके, so likha bhi why indirect taxes can be escaped or avoided by not consuming goods and services. Examples of indirect taxes are, best example we know, GST, goods and service tax, custom duties, excise duties, sales tax, entertainment tax. Okay, आपको पता होना चाहिए कस्टम ड्यूटीज वो होती हैं जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो उस पे टैक्स लगता है. कस्टम ड्यूटीज आर टैक्सेस इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अब्रॉड. ओके, non-tax revenue हम डिस्कस कर चुके हैं. It consists of all other revenue received that arise out of taxes. Commercial revenue, the government sells certain commodities and services to the people and receives commercial revenue. Okay, तो examples हम सबको पता ही है. Commercial revenue received by the government from postage services, जो गवर्नमेंट हमको पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उससे जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करती है, कमर्शियल रेवेन्यू. Interest, toll taxes, electricity and so on. Administrative revenue is the revenue which the government receives from the administrative functions performed by the government. These can be in the form of college fees जो हम पे करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो
जो यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, उसमें जो हम फीस पे करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो हम लाइसेंसेस ऑब्टेन करते हैं अपनी शॉप्स को रन करने के लिए, कोई भी आप शॉप ओपन करते हो तो आप लाइसेंस ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो ऑटोमोबाइल्स के लिए, फायर आर्म्स के लिए, जो फाइन्स एंड पेनल्टीज आप पे इम्पोज होती हैं जब आप कोई लॉ ब्रेक करते हो, all these are received by the government under the heading administrative revenue. Okay, so guys, this is where I stop. In the next class we will properly start from the capital budget. Although capital budget मैंने आपको एक तरीके से explain कर दिया है, but in the next class we will talk about capital budget or capital account in more detail. Okay, we meet for the next class on Saturday. I hope no one has any doubts. Okay, any sort of handout you need, you can just drop a mail at divineschooloфeconomics@gmail.com and I'll share that lecture note with you. Okay, this is where I stop, guys.